Okay, right, great. So Ryan, can you see the slides? Yes, sir, I can see it, sir. Okay, thank you very much. So I'm really grateful for all the Shifa team, particularly the leadership, Ms. Salwa, Mr. Rehan, and all the people who done an excellent effort to make such an excellent contribution for the uplifting of the profession. I'm really glad to hear that you have a 13 lecture in past and with having a 3,000 participation, and that was something which is commendable and wonderful to share and to discuss with the people in the profession in the Pakistan. So I'm be very crisp and to the topic that we have just planned today. I used to select the topics in a way that should be in a softer and a sweeter way that we can learn from the things which we have, which we usually used to see around us. So the challenge, game-changing solution in the healthcare system and preparing the next generation of the pharmacy leaders. And but the concept that the most of the students, once they graduated from the system and they live the life like an jalebi. So I used to have in one presentation just a few months back that was a Rola in Pakistan. So that helps me to point out my stance with the audience. So I'll try to be stick with my today's discussion. Okay, so my objective and the disclosure that I don't have any actual potential conflict of interest in relation to this program and presentations, and the pictures used during the presentation and that you will just see in upcoming slides will be just for the educational purposes. So your start was very excellent. I was just reviewing your videos and the concept you were just talking about, strengthening of the female in the healthcare system and utilizing them effectively. That's a commendable things. So there is no power on the earth that can undo Pakistan. That was something, a slide I've just seen just a few minutes before, and still that's available on the few of the people slides. So it's something very thinking about perspective. So let's start with a very soft story on that. आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इस तरह की स्टोरी पहले भी सुनी होगी। एक गांव था, वहां पर दो बच्चे रहते थे। एक की एज कोई 6 साल थी और एक की एज कोई तकरीबन 11-12 साल थी, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो वो दोस्त अपनी लाइफ को एंजॉय करते करते उस गांव से थोड़ा बाहर निकल गए एक दिन खेलते हुए, और गांव से थोड़ा बाहर एक ऐसा कुआं था जो कि गहरा था, और उनमें से एक बच्चा जो कि एज में ज्यादा था, 11 साल वाला, वो उस खेलते हुए उस कुएं में गिर गया। जो छोटा बच्चा था, जो 6, 6.5, 7 साल का बच्चा था, उसने बहुत चिल्लाया, बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसको बचाए, उसको बाहर निकाल सके। और तो उसको वहां दूर दूर तक कोई भी ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो कि बेसिकली उसको हेल्प या सपोर्ट करता। सो इवेंचुअली करना ऐसा हुआ कि उसको कुएं के पास एक रस्सी मिली, उसने वो रस्सी कुएं में फेंकी, और जो उसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट थी उसने इनकॉपरेट की और किसी ना किसी तरह उस बड़े बच्चे को उस कुएं से निकाल लिया। दोनों बड़े खुश हुए, आपस में गले मिले और खुशी खुशी गांव वापस आए और सब लोगों को बताया कि ये हमारे साथ आज का ये वाकया हुआ है। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि ये कैसे हो सकता है कि 7 साल का बच्चा 11 साल के बच्चे को कुएं से निकाल ले। सो इवेंचुअली पीपल थिंक लाइक दैट कि अच्छा चलो ये बहुत ज्यादा सीरियस है, तो पंचायत के किसी सदर से बात कर लेते हैं। तो पंचायत के सदर के पास गए और उनको ये तमाम मामला बताया। तो उस सदर ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि पहली बात यह है कि हमें इन बच्चों की बात पे ट्रस्ट करना चाहिए, और सेकंड बात यह है कि ये इसलिए निकाल पाया क्योंकि इसको दूर दूर तक ये वाला बताने वाला कोई शख्स नहीं था कि ये तुम नहीं कर सकते। सो इवेंचुअली जो हमारी लाइफ है, जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, आप कुछ ड्रीम अप करना शुरू करते हैं, कुछ सोचना शुरू करते हैं, तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी प्रोवोक करती हैं, एंड दे यूज टू से कि यू कांट डू इट, इट्स नॉट अ डूएबल, दिस इज नॉट अ फिजिबल। और हम एक बहुत खूबसूरत आइडियाज, एग्जीक्यूशन पोटेंशियल्स को लूज कर देते हैं। तो आई try to be focused and talk about this type of the things. So welcome to from Lahore. Lahore, you only Lahori can understand the scenarios and the suffering that we are suffering in last few months. आज मौसम अच्छा है, बारिश अच्छी है। आई एम फोरसीइंग के वापसी पर मौसम बहुत अच्छा मिलेगा, बट इट्स समथिंग पैथेटिक दैट वी शुड कंसिडर अबाउट दैट कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सो अपनी जिंदगी के इंतजार में उम्र गुजर जाती है, ये मुझे किसी ने बड़ा अच्छा कोट किया। और बाद में उसने जो सेकंड बात की वो मुझे उससे भी अच्छी लगी। उसने कहा गालिब फिर पता चलता है जो गुजरे थे वो ही अच्छे थे।
तो क्या हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्या जो आज अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, आज हम जो पढ़ के आगे चलने की बात कर रहे हैं, क्या वो फॉर ग्रांटेड है? नहीं, दैट इज़ समथिंग विच इज़ इन अ ब्लेसिंग पार्ट। और हमें किसी ना किसी तरह से उन चीज़ों को से लेके अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। एक और किसी ने बड़ी अच्छी बात की, कहता है जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता। हम हमेशा एक मेरेकल चीजों में क्या इंतजार करते रहते हैं कि कल मैं ये करूंगा, मैं परसों ये करूंगा, आने वाले वक्त में ये हो जाएगा। लेकिन जब पिक्चर को थोड़ा देखते हैं तो पता लगता है कि लेकिन वक्त को बदलने में जिंदगी लग जाती है। तो समटाइम्स यू नीड टू अचीव, यू नीड एन लॉन्ग टर्म गोल्स, यू नीड टू प्लान कि आप अपनी जिंदगी को कैसे करते हैं और हाउ एफर्ट्स दैट यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इनटू योर लाइफ। सो जिंदगी कैसे है जब हम पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे अभी ज्वाइन कर चुके हैं सेशन को, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर लर्निंग देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ, द पीपल हु इज ऑलवेज पुटिंग ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये बहुत जरूरी है, ये इम्तिहान में आएगा, दिस इज समथिंग, ये इक्वेशन के नीचे ये ई लगाना ना भूलना। और फिर हम एक वक्त आता है जब हम उस चीज को पढ़कर सफर में आगे चल पड़ते हैं। फिर वो तमाम चीजें एक मेमोरीज बन जाती हैं और वो कहीं ना कहीं रिकॉल होना शुरू होती हैं कि जो पढ़ा था, जो एग्जाम में आया था, वो शायद मैंने प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं कर रहा, या जो मैं प्रैक्टिस में कर रहा हूँ वो मुझे किसी ने जब पढ़ाया था तो शायद मैंने उसको उस तरह से उस पर वक्त अपना सर्फ नहीं किया था। तो दिस इज द वे दैट वी learn from a system, we learn in the system, and then when we come into the market, the real grounds, jump into the pool, and then we realize is that the things which were important, that we put it them in a corner, and the thing which was the least we put it them in the front of the desk. तो ये चीजें हम वक्त के साथ साथ आगे चलते जाते हैं। फिर क्या होता है कि जिंदगी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है। यू कैन सी द स्लाइड। मेरे साथ जितने लोग स्लाइड के साथ स्टिक रहेंगे, दे कैन एंजॉय मोर इन द प्रेजेंटेशन। सो you if you can see there's too much over information, you don't have the exact information that you want to see actually. अगर आप शायद इनमें से किसी एक एक को पढ़ना शुरू करें तो जब एक को पढ़ेंगे तो पिछली 10 भूल जाएंगे कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। And these are the real true pictures which I used to take from the different scenarios in my life. बट अगर इस दूसरी पिक्चर जो कि राइट साइड पर आपको नजर आ रही है, इफ यूल सी दिस पिक्चर, तो यूल सी दैट, आई जस्ट स्क्रॉल दिस डाउन, you'll find out that there's a less information available, but unfortunately the information which is required, that is still hidden. तो हमने जिस इशारे को या जिस सिग्नल को देखना है वो तो हमें नजर नहीं आ रहा, बट देयर इज इन लेस इन्फॉर्मेशन, बट द प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन इज नॉट ओवर देयर। तो लाइफ में क्या होगा जब हम बच्चे पढ़ के निकलेंगे, अपने करियर में चलेंगे, तो आइदर वी विल हैव टू मच इन्फॉर्मेशन, और आइदर वी हैव एन इन्फॉर्मेशन विच इज हिडन, which is masked with somebody else things, and we were uninformed actually at the end of the day. सो हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं, पढ़ने के बाद निकलने के बाद जो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आती है कि दैट वी आर जस्ट फॉरगेटिंग दैट, कि आप पढ़े एंड यू विल बी इन अपकमिंग समथिंग अ सऊदी लेजेंड हु इज हैविंग एन इजी पीसी लाइफ, और आपकी जिंदगी बहुत आसान हो गई है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। नाउ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, नाउ द थिंग्स विल कम इन अ वे कि आप कुछ सोचेंगे और अगले मरहले में ताजमहल हम आपके सामने मौजूद होगा। तो सोचने में समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहते हैं बिल्कुल सोचें। इट्स एन ऑलवेज हैविंग एन गुड ड्रीम्स इन योर माइंड। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि ड्रीम्स वो है जो आपको सोने ना दें, यू ऑलवेज हैव एन ड्रीम्स इन योर माइंड, but don't ignore that what's actually the perks comes from। perks आते हैं जब तक आप उसकी प्राइस नहीं पे करते। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर लाइफ, यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर लाइफ। इट्स नॉट लाइक दैट के आप अपनी जिंदगी को प्लान करें कि अच्छा आज ये कर लेता हूँ, कल ये कर लेता हूँ, परसों कर लेता हूँ। बिलीव मी, इट्स एन अ वेरी सीरियस बिजनेस। You need to see that what is your actual goal and how you want to pursue your life। होता क्या है कि जब आपको कुछ गाइडेंस नहीं मिलती तो आप एक स्टैंड अलोन डेजर्ट में खड़े हो जाते हैं। although you have any dreams, you have the ambitions, you have the planning in your mind, but there's no directive way that the person will be a guided कि जी अच्छा मैं अब सहरा में तो खड़ा हूँ, how the direction will comes in। फिर लाइफ थोड़ी आगे चलती है और मल्टीपल क्वेश्चंस कम इनटू द माइंड। आप कहते हो कि अच्छा नाउ इट्स अ फन गेम इज ओवर, नाउ वी नीड टू सी व्हाट्स द सीरियस मैटर्स दैट हमने जो अपनी लाइफ के अंदर स्टफ को रन करना है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस कम इनटू योर माइंड, एंड देन
आपके दिमाग में कोई भी एक एरिया या एक एस्पेक्ट्स क्लियर होता है, एंड देन यू फिर रियलाइज के ओके आई शुड बी सीरियस ऑन दैट वन, दिस इज समथिंग विच इज आई लाइक। वो क्या हो सकता है? आइदर most of the people I have observed, I can witness के आप में से जितने लोग professionally work कर रहे हैं, they can witness on that. I have seen this data that 10 out of 7 out of 10 people are very much crazy about joining in a hospital in a clinical pharmacy profession. Although it's having an average to great salary, it's not like that okay, you don't have an earning a good money. But the cons are that it's in a limited option scenario, and public and private sector both are basically offering this type of the things, but still you have an unlimited option. So this is something which is very lucrative. I feel that 70-75% students are very much more concerned to join in a hospital care settings because they feel this is the area which is basically meant for a pharmacist actually. But the options comes moves forward. There are some certain 1 out of 10 are usually thinking about industrial pharmacy to choose as as in a career progression. But because the number and likeliness is no, that's why I put it in a cons criteria. It's in a purely private sector. There's a hardly I don't remember any government based pharmaceutical industry that's basically supporting and running by the government authorities. Huge options. Obviously, every nitty-gritty place have the pharmaceuticals. They are running their rounds. The people have ease to collect and select the opportunity. And again, there is an average to great salary they do offer in their domain. Then come the community pharmacy. Community pharmacy, again, there's a huge number of options, average to great salary, and 1 out of 10 is interested in this area. So private sector only career growth is questionable because the number of years you spend within any good chain in the pharmacy and you'll still an employee of the a baseline employee, there isn't hardly any growth curriculum or career progression pathway exist. The major challenge that you feel is your companions or competitors. They are category B and C. It's a question that we are competing somebody, they are well below the qualification or the technical expertise. There's another options that comes as a drug inspector, regulator, and authorities. Again, these are limited options. You have a certain number of quotas comes up after a number of years, and the people are waiting on that type of things if they are interested. Purely public sector job, and the most important thing and the most lucrative thing that the few people are very much prone towards the authoritative options. So that's why 1 out of 10 are interested, although they have the offering the average salary and career growth is still a questionable. Hardly very few people can go and in the top position of this type of regulatory authorities. So then what comes? There's another things comes into the mind of the people that let's do or explore something else, which like they move abroad and they feel कि शायद बाहर कोई मन्नो सलवा बट रहा होगा, और वो जो मन्नो सलवा है वो जब I'll just move away, they are waiting for us and they will say, oh, that's you are the most vital person you were waiting, let's come and have an easy peasy job started out. So this is one option that's mostly the students have there in their mind. Then comes the research, teaching, studies versus no studies. I have observed two type of students. So one of them is very prone towards the studies. Yes, sir, मैंने MPhil करना है, मैंने MBA करना है, I want to pursue my studies. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, you can assess at yourself as well. They are very clear, सर मैंने अब आगे नहीं पढ़ना, पहले मैं जॉब करूंगा फिर मैं देखूंगा पढ़ूंगा. So they were fed up from the existing education system they actually gone through in the last 4 or 5 years. Further studies, they have the option. Some say, okay, sir, I'll go for MPhil. Some skipper says, sir, I'll go for MBA. मुझे पसंद नहीं आई pharmacy, so मैं marketing business run करना चाहता हूँ. And there's a misconception. There's a number of students come every second day and they say, sir, मैंने MD करना है. तो मैं तो उनसे अक्सर कहता हूँ कि जहां से करो मुझे भी करा देना, मुझे नहीं पता ये एमडी कौन कराता है, व्हाट इज द प्रोसेस, माइट बी आई एम अवेयर अनअवेयर ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग. लेकिन माइंडसेट बच्चों के ये हैं कि मैंने फार्मासिस्ट बन के भी अपने प्रोफेशन को चेंज करना है. सो दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, दे आर कंफ्यूज इन योर इन देयर करियर लाइफ.
देयर इज ए वन अनदर ऑप्शंस, वो कहते हैं कि जी फार्मा मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में जाना है, दैट्स एन समथिंग ल्यूक्रेटिव, चाहते ही गाड़ी मिल जाएगी, मेरा ट्रैवल होगा, मैं पूरी दुनिया फिरूंगा, और इट्स समथिंग लाइक मुझे कुछ भी नहीं करना, बट द फार्मा कंपनी इज समथिंग जो कि मुझे सबसे ज्यादा शायद करियर ग्रोथ ऑफर करता है. There's another concept that comes into the people minds that running my own business, which is good enough, but वो बहुत सारे लोग शायद विदाउट किसी रीजंस के ही ये बात कर देते हैं कि मैं क्या ये बिजनेस भी रन कर सकता हूँ कि नहीं. मैं कहता हूँ अगर आपने बिजनेस रन करना है, व्हाट्स द नीड टू गेट योर सेल्फ एजुकेटेड, यू कैन रन आफ्टर योर मैट्रिक, इवन यू कैन रन फ्रॉम अ डे वन एज वेल. एंड एवरीथिंग हैज ए प्रोज एंड कॉन्स. सो ये जो मनोसलवा अभी मैं आपको बता रहा हूँ गिरने का, इस तमाम चीजों में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजिंग है. और इस जो अभी कॉन्सेप्ट को, जितने मैंने अभी ऑप्शंस चीजें बताई, इनमें से कुछ अगर मिस भी कर गया हूँ तो people are actually struggling, striving, and trying to understand from the expert of the people who are working in that field. Sir, should I continue research? Should I continue hospital? Should I continue community? Should I continue the government job? What actually he want? तो वो अपनी एक जिंदगी को बिल्कुल वो एक जलेबी की लाइफ की तरह घुमा के रख छोड़ता है, और बहुत सारे जिंदगी के साल अपने वेस्ट कर देता है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपनी लाइफ में एक्चुअली करना क्या है. इसी ऑप्शंस के दरमियान अभी एक और ऑप्शंस भी रेज होती है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, हाउस जॉब. ये एक और इंट्यूशंस आई ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टूडेंट्स. दे यूज्ड टू से कि सर मुझे एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम में डालें, मैंने 5 साल पढ़ लिया, मुझे अब एक फिजिशियन की तरह 1 साल की हाउस जॉब कराएं. सो व्हाट्सएवर द फील्ड आई वांट टू चूज, एन इंडस्ट्री, मार्केटिंग, सेल्स, हॉस्पिटल, क्लिनिकल, I should learn structurally as an practice experience. So life, मैंने जैसे बताया कि it's look like a jalebi until you have a clear idea that what you want to do in your life. So you have to select any one area in your life. वो एरिया कौन सा होगा? चूज द राइट पाथ विच एक्चुअली अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो आपको करने में अच्छा लगता हो, जिसमें आपका दिमाग चलता हो, जिसमें आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो, द एरिया विच एक्चुअली satisfy yourself while you are working and struggling for the upcoming of this type of the thing. लेकिन एक जाते जाते ये तस्वीर मुझे बड़ी पसंद है कि कहते हैं जब जिंदगी गुजर जाती है तो फिर एक उम्र गुजारा है तो महसूस हुआ कि इस तरह तो जीने का इरादा ही नहीं था. हम अपनी लाइफ को क्या रीराइट करें तो हम में से 50-60% कहेंगे कि मैं दोबारा यही नहीं बनना चाहता. आई वॉन्ट टू स्विच माई लाइफ करियर, आई वॉन्ट टू स्विच वट द वे आई जस्ट लर्न. मैंने अपनी जिंदगी की 10 गलतियां की, 15 गलतियां की, 20 गलतियां की. तो मुझे किसी एक शख्स ने बड़ी जबरदस्त बात बताई. उसने कहा कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे, हम सब ने आखिर एक दिन इस दुनिया से जाना है, और उस दिन जाते हुए जब हम हिल भी नहीं पाएंगे और हमारे करीब हमारे दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले आपस में कान में हमारे मुतल्लिक बात करेंगे, तो दैट इज द एक्चुअल इंट्रोडक्शन ऑफ अस. वो हमारा असल तारुफ होगा. और उस तारुफ को सही करने का दिन और वक्त क्या है? वो है आज, जब हमें अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं. तो अगर मैं अपनी बुक को रीराइट करना चाहूँ तो मैं तो यही सुनना चाहूंगा कि जो आप अच्छा महसूस करते हैं. तो वाई नॉट डू इट दैट थिंग्स टुडे. अच्छा करियर या अच्छा फार्मासिस्ट बनने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनने की तरफ फोकस करना पड़ेगा. इफ यू विल बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, नोबडी विल से कि यार ये बहुत अच्छा फार्मासिस्ट था. ही विल ऑलवेज यूज टू से ये बहुत अच्छा इंसान था. सो लेट्स बी एन ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, एंड देन सी कि अल्लाह ताला ने हमें किस सिलसिले से रिस्क देना है, एंड डू अवर बेस्ट. अल्लाह ताला हर चीज में कादिर है और हमें आसानी पैदा करता है. अब होता क्या है, ये है एक पिक्चर जो कि मैंने बहुत दफा अपनी प्रेजेंटेशंस में अक्सर दिखाता भी हूँ कि लेट्स से रीचिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और माय क्वेश्चन इज दैट के व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू रीच पॉइंट ए टू बी. तो यूजुअली जो फर्स्ट ब्लंट आंसर आता है दैट कम्स, दैट्स अ येलो पाथ. तो देन आई रिपीट माई क्वेश्चन कि व्हाट इज द फास्टेस्ट रूट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. और जब हम इसको साइंटिफिकली प्रूव करते हैं
So the fastest route is point a yellow path. I'll just go back to this slide again and just let you brief. I didn't say कि what is the shortest path. हमें हमें आज के बच्चों में ये जो जेनजीज चल रहे हैं ना माशाल्लाह, जेनजीज के अंदर shortest path is more important instead of any green, red, and blue path. The generation thought process is that to make the results as soon as possible. So we need to see कि हम अगर फास्टेस्ट कहीं रीच करना चाहते हैं तो इट्स मे बी अ लेंथियर पास्ट, बट इट्स एन ए फास्टर पास. तो अगर हम ए पाथ पर रन करते हैं तो यू कैन सी यू कैन गेट एन रैपिड इनर्शिया एंड देन यू रीच योर डेस्टिनेशन पॉइंट बी. जबकि डेस्टिनेशन में दोनों में शॉर्टेस्ट पाथ अगर बात करूं तो दैट्स एन येलो पाथ. तो दिस इज समथिंग विच नीड टू बी लर्न बाय द न्यू जनरेशन. So setting a goal and achieving it is not in a straight line. Obviously, setting a goal, starting it, doubting it, learning it, and once you learn, you fail, then you practice, then you feeling lost, and then you getting it, struggling it, and achieving it. The life of Jalebi does not means an confusion life. Life of Jalebi mean is in something which is an inspiring and redo things scenario as well. So it's in a two-way phenomena that don't confuse and stuck your thought process like in a jalebi. And if you work for any straight path, to consider that you have to redo multiple things in your life as in a reality aspects. A very quick slide I used to share with my presentation most of the time, but मैं slide को कभी भी ignore नहीं कर पाता because मुझे बहुत पसंद है. I used to ask most of the people what is the difference between all those three ambulances. तो बहुत सारे मिक्स आंसर्स आते हैं. एक तो बड़ा फनी आंसर भी मुझे एक दफा मिला. एक शख्स ने कहा कि इनमें से एक स्टार्ट है, दो बंद हैं. तो आई सेड कि आई डोंट रीच एट योर एस्थेटिक लेवल. आप इतने आगे तक भी सोच सकते हो. सो बड़ा क्लियरली समझ आता है कि एम्बुलेंस दो पे उल्टा लिखा है और एक पे सीधा लिखा है. और मैं जब बचपन से जवान और मैं जा रहा था तो मैंने पहली दफ़ा जब ये देखा तो मैंने ये किसी से पूछा कि ये क्यों ऐसे लिखा होता है. उसने कहा जी ये वैगन जो एम्बुलेंसेज है ये रशिया से आती हैं, सो दैट्स वाई वहाँ पे इंग्लिश उल्टी लिखी जाती है. तो मैंने बहुत साल इस चीज़ पे बिलीव किया. और जब गाड़ी चलानी शुरू की तो पता लगा कि ये आपको रियर व्यू कैमरा में, रियर व्यू जो मिरर है उसमें देखने में हेल्प करता है. एंड देन यू कैन हैव द आइडिया के बैक हैंड के ऊपर एम्बुलेंस लिखा हुआ है. सो मैंने कहा दिस इज वंडरफुल. अगर ये ऐसा ही है तो पहली दो चीजें तो ठीक हो गई. व्हाट्स द इशू विद द थर्ड वन? उसने इस चीज को ऐसे क्यों नहीं लिखा? तो आंसर इज वेरी सिंपल इन दिस नेक्स्ट क्लिक इज दैट कि everybody have their own directions, everybody have their own opinion, thought process, beliefs. हम सोचते नहीं हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है. हमने ऐसी एम्बुलेंसेस भी देखी हैं जिस पे एम्बुलेंस भी नहीं लिखा होता, उस पे सुबहानी लिखा होता है, उस पे ईदी लिखा होता है. सो एवरीबॉडी हैव देयर ओन कॉन्सेप्ट एंड वंस द एनवायरनमेंट जहां पर कॉन्सेप्ट सबके अपने हों, making a straight path is something different. We used to travel a lot on motorways. I remember हम में से मेरे ख्याल से सब लोग ही कहीं ना कहीं मोटरवे पे ट्रैवल कर चुके हैं. और अगर किसी ने मोटरवे पे ट्रैवल नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट के 3:10 की टिकट लें और योर लाइफ फर्स्ट जर्नी शुड बी ऑन ए मोटरवे अगर आप मिस कर चुके हैं. सो जब हम मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं तो बेस्ट थिंग इज दैट यू सी स्टैंडर्डाइज यूनिफॉर्म बोर्ड लाइक लाहौर इतना रह गया, ननकाना साहब इतना रह गया. and you travel on M1, M2, M3, this is wonderfully signed and wonderfully informed. बट जब मैं अपने प्रोफेशन की बात करता हूँ तो पंजाब में आता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि फार्मेसी का बोर्ड ग्रीन, और जब मैं केपीके में जाता हूँ तो कहते हैं फार्मेसी का बोर्ड रेड. तो मेरा जो स्टूडेंट है, जो मेरा बच्चा है, जब वो बाहर निकलता है एनवायरनमेंट्स में तो वो कहता है कि सर सड़क पे चलने के लिए तो एक रूल्स हैं, लेकिन जब हम सूबों में चलते हैं तो हमारे ही एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोफेशंस के कलर डिफरेंट क्यों है. तो दिस इज अ क्वेश्चन विच वी नीड टू एड्रेस. इट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी कन्विंसिंग कि जी लाहौर में लाल बोर्ड होगा तो वो दैट इज सब स्टैंडर्ड, दैट्स फॉर अ मेडिकल स्टोर, और यही वाइस वर्सा ऑपोजिट है इन हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द सेम कंट्री ऑन द सेम अनदर प्रोविंस. इसी तरह मैंने कुछ अद्वियात नाम मैंने मिक्स कर दिए, हाइड कर दिए हैं. वी यूज टू सी के टैबलेट्स, एक ही दवाई चौरस में भी आती है, गोल में भी आती है, ओवल में भी आती है, एक स्टार शेप भी है इसमें, वो मेरे पास नहीं मिली. मैंने अपने करियर में डिफरेंट टाइम लाइन्स पे इनको पिक किया होता है, कहीं ना कहीं संभाल के रखता हूँ. बहुत टाइम लगा कि ये क्यों इस तरह ये दवाई बनती है. तो फिर मुझे एहसास हुआ, पता लगा कि जब लोकल जीपीज प्रिस्क्राइब करते हैं इस तरह के स्टीरॉइड्स तो हर डब्बी की शेप को दो दो गोलियां डाल देते हैं ताकि पेशेंट समझे कि दीज आर समथिंग विच आर डिफरेंट एंड दे हैव टू कंप्लाई, और कंप्लायंस और एडहेरेंस को बेहतर किया जा सके.
वी हैव इन अ सिस्टम अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सब स्टैंडर्ड, अनअप्रूव्ड, अनस्टैंडर्ड या नॉन कंप्लायंट कैटेगरी में मिलती हैं, एंड वी आर एग्जिस्टिंग विद इन दैट सिस्टम. सो हमारा जो बच्चा जब पढ़ के निकलता है, दे हैव दन मल्टीपल नॉलेज. वो उसको किग्नोजी पढ़ा दी जाती है, उसको केमिस्ट्री पढ़ा दी जाती है, उसको सूटिक्स पढ़ा दी जाती है. देयर इज अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट ही हैज ए कमांड. यहाँ तक तो वो बहुत अच्छा है, बट जो मुश्किल है वो है इंटीग्रेशन. जब तक वो इन सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट नहीं करेगा, इंटेलिजेंस बिल्ड नहीं करेगा, दैट द पर्सन इज नॉट वेरी मच यूजफुल. हम पढ़ाते हुए ही कह देते हैं कि ये दो सब्जेक्ट ना पढ़ो, ये तो वैसे ही फजूल में डाले हुए हैं, इसका प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं है. बट आई डिसएग्री ऑन दैट. every subject have its own importance, its own a sense that basically कहीं ना कहीं वो आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में नजर आती है. अब सवाल आती है कि ऐसे कंफ्यूज बच्चे, लिविंग लाइफ ऑफ अ जलेबी, व्हाट्स द जेन वाई एंड जेन एक्स आर डूइंग. जो पुराने लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आने वाली पॉपुलेशन के लिए. तो लीडरशिप इज नॉट अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन, इट्स अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन. So we should be very much careful about that. The people who have the experience of 20 year plus in the good fields, they are having a good knowledge, expertise. They have the responsibility to think about the people who are coming with the next generation. अभी generation Z है, alpha आ रही है, so we need to think them likewise the way they are thinking. So leadership is not a making any new election. It's actually a presence or making sure that impact last in your absence. आप वहां नहीं भी हैं तो तब भी उसका impact आप generate कर सके. That is something to make other better. पाकिस्तान की पिक्चर को थोड़ा देख लेते हैं. चैलेंजिंग फार्मेसी प्रैक्टिस, लीडरशिप चैलेंजेस क्या हैं. ओवरऑल वी हैव एन अनफॉर्चुनेटली वीक हेल्थ केयर सिस्टम विद लिमिटेड बजट कैपेसिटी. फार्मेसी इज नॉट एट द ब्रिंक ऑफ इम्पेंडिंग लीडरशिप क्राइसिस एंड द लैक ऑफ यंग लीडर्स. हमें यंग लीडर्स चाहिए, मुझे नेक्स्ट जनरेशन चाहिए. ये जैसे जनरेशन, मैंने जी की बात की, अल्फा की बात की, मुझे एक जनरेशन सी भी नजर आ रही है. वो जनरेशन सी वो है जो कि कोविड में पढ़ के निकली है. I'm very, very much concerned about the people who just graduated during the COVID timeline. वो जो 2 साल ऑनलाइन पढ़े हैं, they are actually a weak pharmacist, ये my understanding. But they need to be considered for some additional courses. But मुझे ये लगता है कि that is slightly weak ball in our end, जो कि हम सफर कर रहे हैं. We have a professional responsibility to deliver care to our patients. Lack of strong leaders cause disengagement of the member, making change even more difficult. जब हमारे leaders ही एक पेज पर नहीं होंगे तो हम कैसे change को ला सकते हैं. One of the major challenging in changing pharmacy practice is the widespread basis that the pharmacy profession is diverse. अब just discuss के हम हर चीज के हरफन मूला स्पेशलिस्ट हैं. Once you have a degree with yourself, category है, जो मर्जी करें. Old drug act, curriculum, regulation, role of pharmacy council, that is a questionable thing that needs to be. इनको तो मुझे लगता है टोस पे काम करना चाहिए. सीरियसली, इट्स नॉट एन लॉन्ग स्टोरी कि जी 100 साल बाद एक चीज चेंज हो जाएगी और हम उस पर सेलिब्रेट करेंगे. तो वो 100 साल पहले थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, वो 100 साल पहले ही फायदे की थी. द टाइम द यूर फोर्सिंग शुड बी लाइक वे कि अगर आपको एक चीज को प्रूव करने में 20 साल लगते हैं तो प्लीज 20 साल आगे का सोच के कुछ चीजों को लेकर चलें. फार्मेसी प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस, ये बेहतर हो रहा है, बट स्टिल दैट्स एन थिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट. लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड practice training program, for example pharmacy residency program. How do you feel about the non pharmacists leading our profession? हमारे बहुत सारे professional institutions हैं, उन पर जो टॉप नॉच लोग होते हैं, they are non technical people and they are basically overseeing all the technical expertise and process. मेडिकेशन सेफ्टी है फॉर्मली स्टडीड एनीवेयर. ये इट्स इन क्वेश्चन. अब ये वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर हो रही हैं. एमबीबीएस में भी ये चीज आ रही है, फॉर्म डी के अंदर भी कहीं इसको कंसिडर कर रहे हैं. बट पीपल आर एक्चुअली अनअवेयर. हम बहुत सारी प्रैक्टिस की चीजों को अपने करिकुलम कोर्सेज के अंदर मिक्स करते हैं. इट्स एन ओल्ड स्लाइड, 2016 के बाद की मुझे कोई स्टडी नहीं मिली, बट दैट्स अ मोस्ट रेलिवेंट स्टडी विच शोज दैट द ग्लोबल फार्मेसी वर्कफोर्स कैपेसिटी एक्चुअली है कितनी.
आप देख के हैरान होंगे, द ग्रीन एरोज क्लियरली शोज दैट पाकिस्तान इज हार्डली अ वेरी बिलो नंबर। दिस एक्चुअली सपोर्ट के, इसका मतलब है पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ फार्मासिस्ट बना रहे हैं, दे आर below the number of required, which is let's say 6 per 10,000 population। इसको जब देख के हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स इन द रीजन है, जब हम एमरो रीजन्स की बात करते हैं, ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन्स की, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इसकी खपत है फार्मासिस्ट की, दैट इज इन कम्युनिटी सर्विसेज। लेकिन पाकिस्तान जैसे सिनेरियो में ये खपत एक्चुअली कैटेगरी बी और सी ज्यादा ऑक्यूपाइड करते हैं एज कम्पेयर टू योर एक्चुअल फार्मासिस्ट। वर्कफोर्स बेस्ड जेंडर वाइज देखा जाए तो अगेन एमरो रीजन के अंदर ऑल दो कि यहाँ पर फीमेल की परसेंटेज लेस देन 40% लग रही है, बट आने वाले जो कुछ साल हैं इसमें मुझे लगता है इट विल बी 80-85%। अगर हम अपने करियर या अपने करिकुलम या कोर्सेज को ही देखें तो उसमें तो तकरीबन 80% पार्टिसिपेशन फ्रॉम द फीमेल साइड होती है। क्विक नंबर जो कि डब्ल्यू एच ओ बताता है, कि डब्ल्यू एच ओ की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएं तो यू कैन सी के वी आर नॉट अपडेटेड, वी डोंट हैव द ग्रिप्ट। 2019, 18, 17 इसके नंबर सेम है। तो whatsoever the people who are basically providing these number, they are not itself updated, कि यार हम एक ग्लोबल सिनेरियो को जब अपना नंबर देते हैं तो हम अपने नंबर ही ठीक कर लें। 2019 के बाद आज 2024 आ गया, वी आर नॉट ग्रिप्ड के हम एक इंटरनेशनल रिकग्निशन फेज पर अपना नंबर ही सही कर लें। अनदर इंफॉर्मेशन आई जस्ट ड्रैग्ड फ्रॉम अ डिफरेंट रिसोर्सेज। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने में, बनाने में। और यू कैन सी ओवर द इयर्स, बिकॉज मैंने जैसे भी एक स्लाइड दिखाई थी जहां पर ये बताया गया था कि हमारे फार्मासिस्ट नंबर्स बहुत थोड़े हैं इन द रीजन। सो दैट्स वे वी आर सपोर्टिंग अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन हु इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग एंड फॉर्म दी स्टूडेंट्स। सीरियसली मैं हर दूसरे तीसरे चौथे दिन एक नए इंस्टीट्यूशन का नाम सुनता हूँ, आई गेट सरप्राइज कि अच्छा ये भी फार्मेसी स्कूल ओपन हो गया है। और हमारी तमाम लीडरशिप उन स्कूल्स को ओपन करवाती है, पता कराती है, और उसके बाद द ईयर्स गॉन उनमें से क्वालिटी स्टूडेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते। सो देयर इज अ चेक एंड बैलेंस, शुड नॉट बी एज मच एज विच इज रिक्वायर्ड। आपने एक ह्यूमन बेस्ड इंटरवेंशन, ह्यूमन रिसोर्स पैदा करना है, विच इज अ लाइसेंस पर्सन। इट शुड बी वेरी टॉप नॉच पीपल एंड दे शुड बी वेरी ग्रिप्ड स्टूडेंट्स। ये आप समझ लें कि लम्स हर गली मोहल्ले में खुल जाए तो लम्स तो अपनी वैल्यू लूज कर देगा। सो कंट्रोल्स आर वेरी वीक। जब हम देखते हैं वो पढ़ा क्या रहे हैं, वो फॉर्म डी पढ़ाते हैं, एमफिल पढ़ाते हैं, पीएचडीज कराते हैं, 75% फीमेल्स हैं, एंड 539 फार्मेसी टेक स्कूल्स हैं जो कि 53,000 टेक्नीशियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि आपकी एक्चुअली कम्युनिटी फार्मेसी को कवर या सर्व करेंगे या कहीं ना किसी हॉस्पिटल में खप में जाएंगे। सो वी नीड टू सी स्ट्रेटेजिकली कहते हैं व्हाट्स द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव इज दैट एंड व्हाट शुड बी द कंट्रोल एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जब हम इतने अच्छे इदारे खोल लेते हैं तो हम बच्चे के पहले दिन में डालते हैं कि आप ना कैप्स दे दें, आप ऑस्की दे दें, आप नेपलेक्स दे दें, यू विल सेटल इन यूएसए, यू विल सेटल इन कनाडा, यू विल सेटल इन ऑस्ट्रेलिया, यू नेम इट। एंड बच्चे का वो पहले दिन दिमाग बन जाता है। तो मुझे तो कभी कभी शक लगता है कि हम अपने लिए तो फार्मासिस्ट बना ही नहीं रहे, वी आर प्रिपेयरिंग ह्यूमन रिसोर्स फॉर ओवरसीज अनफॉर्चुनेटली। सो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग हैंड्स ऑन स्किल्स। हमने बहुत अच्छा फार्मासिस्ट दिखाया, लेकिन जब उससे काम करवाने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है सर अभी तो मैंने सीखना शुरू करना है। मैं जब इंटरव्यूज लेता हु तो वो कहते हैं सर ये इदारे में मैं काम करूंगा तो मेरी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। तो हम कहते हैं हम आपको पे कर रहे हैं फॉर योर स्किल्स, नॉट फॉर इम्प्रूविंग योर स्किल्स। सो हु विल इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ दैट पर्सन जो कि जॉब से पहले स्किल्स लेके आए। यू कांट से कि मुझे आप फौज में रख लें और उसके बाद मैं ना तमाम वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कर सकता हूँ जो कि मेरे से एक्सपेक्ट की जाती हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पहले आपको तैयार करे, जब आप फुल फ्लेज तैयार हो जाए फिर आप कहें जी मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर। सो फार्मासिस्ट इज एसेंशियल मेंबर। अगर ये फार्मासिस्ट लायक है, इट्स एन वंडरफुल मैन। अगर ये नालायक है तो इसी में हार्म छुपा हुआ है। ठीक है, इट्स द मोस्ट हार्मफुल पर्सन दैट यू कैन एनकाउंटर। द important thing is that you should be the arm of the healthcare system, how to strengthen the हॉस्पिटल सिस्टम्स कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब जब ये बात करते हैं तो एक सवाल आ जाता है सर हमारे मुल्क में ना रिसोर्सेज बड़े कम हैं, वी आर वेरी स्कार्स विद ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल दो स्टफ। सो वी नो वी आर लिमिटेड रिसोर्सेज, आई नो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वी एग्जीक्यूट पुअरली, वी मिस यूज इंस्ट्रक्शन। अगर हम किसी एक दीवार पे लिख के लगाने के दीवार को हाथ ना लगाएं, दीवार में करंट है, तो अनफॉर्चुनेटली हम उसी दीवार के ऊपर बैठना पसंद करते हैं। वी आर लीस्ट
bother okay, what are the education system, what are the instructions that we are follow, and what are the expectation that comes from our sides. पेशेंट राइट्स को कभी भी भूल नहीं सकते हम. यू डोंट से कि अच्छा ये मैंने ड्रिप लगा दिया, चल हैंग ऑन योर ड्रिप और इसको पकड़ी रखो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे. आप खुद असेस कर सकते हैं कि ड्रिप एक ड्रॉप बाय ड्रॉप चलती है. इट्स वेरी हार्ड एंड चैलेंजिंग फॉर ए पर्सन टू से कि अच्छा ये तमाम चीजें आप लेकर चलें. कुछ रैंडम पिक्चर्स हैं मैंने ओवर द इयर्स अपने प्रोफेशन में ली, बट द लेफ्ट टॉप नॉच पिक्चर इज समथिंग a question always come into the mind. It was in one of the very renowned hospital of Rawalpindi, a government hospital. Or you see chemotherapy is going to be prepared on the bed of the patient, on the bed of the patient, not a bedside even. ऑपरेशन थिएटर. हम इतने इतने हमारे पास वक्त की कमी है कि हमने जो अपनी हेल्थ है ना उसको टेक अवे में कन्वर्ट कर दिया. वी कांट स्टॉप, वी कांट सिट. हम कहते हैं अच्छा यार तुम ही टीका लगा दो, यू आर ए नॉन क्वालिफाइड पर्सन, वी आर गुड टू हैव, बट मेरा काम होना जरूरी है. सो वी आर नॉट इन ए सिचुएशन टू एग्जीक्यूट पुअरली. यार पाकिस्तान में रोज रोज हम अपने रिसोर्सेज चीजें रीजनरेट नहीं कर सकते. आप अपनी लाइफ में अपने रोज रोज ये प्रोसेसेस चीजें रीजनरेट नहीं कर सकते. यू हैव टू एग्जीक्यूट वेरी स्मार्टली, प्रिसाइसली. सो बेस्ड ऑन दैट, ये जो पीछे सारी मैंने कहानी बात की, I'll take a speed up on from now onward. शौकत खानम ने इस पे बहुत सोचा एंड दे प्लान के हाउ टू मेक हेल्थ केयर रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन. और एसकेएम ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए जो कि चेंज कर सके लैंडस्केप ऑफ फार्मेसी इन पाकिस्तान. इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. मेडिकेशन मैनेजमेंट यूज सिस्टम कंप्लीटली आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग टू लेके टिल द ड्रग शॉर्टेजेस, बिकॉज ओवर द टाइम बहुत सारी इसमें चीजें, इस सब पे कहीं ना कहीं शौकत खानम ने अपना स्टांस काम किया. उन स्टांस की समरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिजी स्लाइड, यू नॉट कैच अप द थिंग्स, बट दिस डैशबोर्ड शोज इन अ सिंगल स्लाइड कि हाउ precisely we work. This another slide shows that a 1 year work, that how we can straight up the path of the people who is basically want to learn a career planning things. इसमें number of things हैं, publications हैं, journals हैं, cross site audits हैं, cross site human resource है, layering है, traveling है, the number of things. There's a number of multiple activities going on. अच्छा, एक फीवर और आजकल चढ़ गया बच्चों को. मैंने देखा है, मैं जिस बच्चे से बात करता हूँ थोड़ी देर बाद हमें या अपने आप को शायद डिसीव करता है. वो कहता है सर मैंने बोर्ड सर्टिफिकेशन करनी. वेरी यंग बच्चा, नॉट फेमिलियर विद द प्रैक्टिस, नॉट फेमिलियर विद द डे वन एक्सपर्टीज. और वो कहता है सर मैंने ये करना है, ये करना है, और उसको दो लफ्ज आ गए हैं कि मैंने बीसीपीएस करना है, मैंने बीकॉप करना है, मैंने आईडी स्पेशलाइजेशन करनी है. विच इज गुड. एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि उनको समझ आ गई है कि दिस इज समथिंग विच इज डायरेक्टिव. लेकिन लेट्स बी अ रियलिस्टिक एज वेल. हमने बहुत साल पहले ये एक्सरसाइज शुरू की, बच्चे पढ़ाए, बच्चों को बनाया, बच्चे बाहर जाना शुरू हो गए. हमने एक ऐसी रेस में लग गए जहां हमें लगता था कि शायद सब कुछ वन वन करना इज समथिंग अचीवमेंट. लेकिन मेरी पर्सनल बुक्स में मुझे लगता है कि दैट इज ए फीवर नाउ. हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना बच्चों को. हमने ये नॉलेज को की कंपनसेशन बनानी है, जो कि आई श्योरली से एट द सेकंड लास्ट स्लाइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन कि इसकी कंपनसेशन कैसे बनानी है. आई पार्क दिस फॉर अ व्हाइल. तो हमने स्ट्रक्चर्ड रेजिडेंसी शुरू की. 1995 का विजन था. ऑन अ डिफरेंट टाइमलाइन इंटरवेंशंस वी हैव डन मल्टीपल थिंग्स, अचीवमेंट्स. और हमने एक इंटरनेशनल रेजिडेंसी प्रोग्राम रन किया पाकिस्तान के अंदर. वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब शिफा, आगाहान, दे आर डूइंग द सेम थिंग एंड दिस इज अ वंडरफुल जॉब they are contributing in the towards the pharmacy profession. And I appreciate कि अच्छी चीज replicate करें. This is always something which is encouraging. Never इस पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ कि ये किया जा रहा है, but the इदारा, that the beauty of the Pakistan, that's is the more important thing is instead कि हम कोई एक बंदे या दो बंदे को इस चीज के लिए ठहरा दें. फ्यूचरिस्टिक प्लान 24-25 में हम इसी इंटरनेशनल फार्मेसी प्रैक्टिस रेजिडेंसी के एडवांस प्रोग्राम पे जा रहे हैं. वी हैव डेवलप्ड द ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस. इंशाल्लाह यू विल सी इन फ्यू वीक्स दैट एडवांस इंटरनेशनल फार्मेसी प्रैक्टिस रेजिडेंसी फॉर द ईयर 2 will be launched in Pakistan, and it will be very easy to replicate for the other institution as well. And pharmacy fellowship plan.
अब ये सब कुछ बन तो रहा है, मतलब इट्स अ डूएबल थिंग, इट्स ये सब प्लान में है। हम इस साल इसको ईयर 2 को अचीव करेंगे, नेक्स्ट ईयर 3 को अचीव करेंगे। सो वेरी स्ट्रक्चर्ड पीपल वी हैव इन द कंट्री, लेकिन उनको कंपनसेट कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, वो एक क्वेश्चन है। सो अभी ये करंट पिक्चर ये है कि आपका जो फार्मासिस्ट है, जब वो पढ़ के निकलता है, लाइक वेरी यंग फार्मासिस्ट, ये देख दे आर इन अ ग्रीन बॉक्स एट द मोमेंट, एंड दे जस्ट हैविंग इन फॉर्म डी, एंड देन वो कहते हैं कि मैंने एक जर्नल प्रैक्टिशनर बनना है ओवर द रेड लाइंस। और उसके बाद वो कहेंगे, सर मेरा 20 साल का तजर्बा है, सर मेरा 15 साल का तजर्बा है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग दैट यू हैव? नन। तो हम चाह रहे हैं, एक सजेशन है, प्रपोजल है कि कंट्री वाइड ये जो रेड लाइंस हैं इनको खत्म किया जाए, एंड दे शुड हैव एन स्ट्रक्चर्ड रेजिडेंसी प्रोग्राम। वो मैं अभी ऑप्शंस दूंगा, इट्स नॉट एन हॉस्पिटल बेस्ड रेजिडेंसी प्रोग्राम, इसकी अदर ऑप्शंस भी बन सकती हैं। A very quick picture, a micro specialization concept, माशाल्लाह अच्छे जो hospitals हैं, they are on to the right track, and now they have the subspecialties. ये concept आ गया, नहीं तो आज से पहले clinical pharmacist ही नाम चलता था। You see a number of beautiful people, self-driven learning concept they are basically achieving. वो खुद से अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, वो learn करते हैं। तो there is a people, once you are in the right path, you start eagering and learning that what you want to achieve. तो वो जलेबी की लाइफ से निकल के जब आप अपने ट्रैक पर आते हैं, तो यू आर वेरी प्रिसाइज। तो हम इन गैप्स को एक्चुअली फुलफिल करना चाहते हैं। इंटरनेशनल क्लिनिकल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स पर जब जाएं, तो देयर इज अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स बेसिकली जो आपको एजुकेट करते हैं, हेल्प करते हैं कि कैसे आने वाले टाइमलाइन के अंदर आप अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट कॉम्पिटेंसी एंड प्रैक्टिसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, continuous professional development, collaboration, outcome and patient need basis, comprehensive medication management systems. So all these things are helpful. Clinical pharmacy practice needs in Pakistan integration into the healthcare teams. That's something which is which area needs to be addressed and explored. Medication therapy management, patient counseling and education, and medication safety and quality assurance. मिसिंग असेंशियल कंपोनेंट्स जो कि हमारे सिस्टम में मिस हैं, आई थिंक दे शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर लर्निंग इन देयर लाइफ जर्नी, विच इंक्लूड द स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं बच्चों को पता होता। सो यू कैन हैव एनी स्टीवर्डशिप इन टर्म्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, नार्कोटिक, ऑन्कोलॉजी, यू नेम इट, एंड यू कैन हैव एन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम, डोज एडजस्टमेंट, लैब इंटरप्रिटेशन, इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, एंड द नंबर ऑफ थिंग्स. There are few institutions I observe as well. They are towards this type of the approach and the concept of the things, where they are basically integrating this type of the concept at the time of their curriculum. But what's the stance that if one institution is doing a wonderful, excellent job, where is the council that basically make it uniform for all the rest of the institution? So if one is doing excellent job, let's understand, think, and tell them, let's come step ahead and let's do and replicate for all the rest of the institutions. So थोड़ा सा हमें अपनी कोलैबोरेशन को बढ़ाने की जरूरत है। आज की जरूरत क्या है? प्रैक्टिस बेस्ड रेजिडेंसी प्रोग्राम बनाए। मैं कहता हूँ हॉस्पिटल तो एक लिमिटेड ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया, व्हाई नॉट मेक एन अ कम्युनिटी रेजिडेंसी प्रोग्राम? And once you have a community residency program, this is the major area that you can incorporate the maximum healthcare strength force, which is something lucrative, और ये आपको हर तरह से आने वाले वक्त में फायदा देगा। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे सीरियसली, 5% can't make an impact on the rest of the 95%. So this is something which is which needs to be addressed. We are also going to launch certain diploma programs in 2024. इसका पहला डिप्लोमा अभी हम जर्नल करेंगे, then we will go for a micro specialization. So we are working on that. Recommendations क्या हैं for bridging this gap? Ideally we should follow the international curriculum without any change. मैं अक्सर कहता हूँ कि यार जो बाहर पढ़ा रहे हैं उठा के कॉपी पेस्ट करने हैं, why you want to reinvent the wheel all the time? So curriculum जो revision है, that is important. Integration of a more practical training and experiential learning opportunity. Faculty development is very important. The people do not have the idea that what actually practice is. We have a number of good practicing personnel in the curriculum.
but they should be a collaborative and they should be a practicing personnel. Rather, I should they should be a once didactic personas only. Collaborations is something to be important, and awareness about some structured residency program. So we need to collect focus collectively. It's a very soft game. I used to play with most of my students. मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि 1 से 10 तक कोई भी नंबर गिन ले, सो जो ऑनलाइन सुन रहे हैं अगर वो गिन लें तो जो भी आपने नंबर सोचा है उसको अगर आप सोचने के बाद डबल कर लें, और डबल करने के बाद उसमें अगर 8 ऐड कर लें तो आपके पास एक बड़ा नंबर बचता है। उस बड़े नंबर को अगर आप हाफ करें और जो ओरिजिनल नंबर सोचा था तो आपके पास लेफ्ट ओवर एक नंबर बच जाता है, 1 2 3 4। मैं अभी वो एक्सरसाइज नहीं करवाता, लेकिन मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। सो अगर आप वो जो आपका नंबर बचता है उसको अल्फाबेट में कर लें, 1 है तो ए में कन्वर्ट कर लें, 2 है तो बी में, 3 है तो सी में, और अगर 4 है तो डी में। तो मैं कहता हूँ इस अल्फाबेट से आप ना एक कंट्री सोचें, उस कंट्री के लास्ट अल्फाबेट से एक एनिमल सोचें, और जब एक लास्ट अल्फाबेट से कलर सोचें तो हमेशा आंसर डेनमार्क कैंगरू ऑरेंज आएगा। देयर इज 99%, 1% प्रोबेबिलिटी में कुछ और भी आ सकता है। सो पर्पस ये है कि थिंग्स आर डूइंग प्रिसाइजली, तो ऑलवेज दे एंड अप विद सिमिलर रिजल्ट्स। सो जाने से पहले जस्ट मेरी लास्ट स्लाइड्स जो बड़ी फेमस है हमारे टिकटॉक्स के ऊपर के, रुको रुको आपने प्रॉब्लम्स बता दी, मसले बता दिए, कुछ ऐसा भी तो बताएं कि जिससे किसी को फायदा हो। तो मैंने कुछ फायदे वाली चीजें भी इसमें मार्क कर दी है। व्हाई नॉट वी गिव द प्रैक्टिस अलाउंस, मेडिकेशन काउंसलिंग अलाउंस फॉर स्पेशल ड्रग्स, practice allowance for a pharmacovigilance reporting. Why we don't provide the practice allowance for each accepted pharmacy clinical intervention? This is the area which is I'm very much focusing, कि चाहे मुझे 1 रुपया दे दें, चाहे मुझे एक रिडीम पॉइंट दे दें, बट वन इंटरवेंशन शुड बी रिवॉर्डेड विद इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। वो पहले छुट्टी देनी है दे दें उसको, कोई उसकी उसके कोई एनुअल इंसेंटिव में कुछ डालना है, but it should be something which should be linked with some incentive. स्किल्ड अलाउंस हमें देना चाहिए। जो हमारी काउंसिल है, अगर आपके मुल्क में बोर्ड सर्टिफाइड हाईटेक लोग काम कर रहे हैं, टू रिटेन एंड रिटेंशन ऑफ दोज पीपल शुड बी समथिंग विच इज एरिया ऑफ कंसर्न। अदरवाइज आप ब्रेन ड्रेन करेंगे, जो थोड़े बहुत लोग काम कर रहे हैं वो भी आपका मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। तो हाउ यू विल, व्हाट्स योर रिटेंशन स्ट्रेटजी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल? स्ट्रेट हायरिंग इन PPSC सीट, पंजाब सब पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई जॉब आती है यार ऐसे लोगों को जो कि बोर्ड सर्टिफाइड करते हैं, जो तो देन दे विल बी, फिर मैं कहता हूँ बच्चों ख्वाब देखो पहले दिन, तो आप पढ़ के निकले आपके मैंने बोर्ड सर्टिफिकेशन करनी है, मैं कहूंगा गुड, गो हेड, आई विल सपोर्ट यू, ताकि आपको आगे करियर में कुछ नजर तो आए। अभी प्राइवेट सेक्टर गिने चुने 2 4 5 कितना को आपको एडजस्ट करेंगे, इंस्टेड ऑफ द जहां पर 8,000 बच्चा निकल रहा है। तो वाई नॉट गवर्नमेंट, वाई नॉट समथिंग lucrative things that basically make in a direction and support that you're strengthening the system. Otherwise it's an a nightmare जो कि हम लेकर चलेंगे। तो once again leadership is not about being the best। ऐसा नहीं है कि आप लीडर हैं और आप हमेशा मैं बेहतरीन हूं। लीडरशिप इज अबाउट मेकिंग एवरीवन एल्स बेटर। हम सब अगर सही पोजीशन पे खड़े हैं, सही जगहों पे खड़े हैं, देन वी कैन डेवलप एन क्राउन ऑन आवर माइंड्स। इस तरह उसके बगैर नहीं हो सकता। तो बड़ी अच्छी किसी ने बात की, ये रक्से इश्क है कि बेवजू नहीं होता, ना दिल हो पाक तो हासिल भी हो नहीं होता। So there is always a better way of doing things. I'm really grateful for Shifa International Hospital. I'm more precise with the time. जाते जाते बस एक बात करता जाऊंगा कि जहां शुरू में गांव की स्टोरी सुनाई थी, वैसे ही एक और गांव की स्टोरी सुनाता जाऊंगा। Then I'll hand over to Shifa team back to their topic. एक गांव था, वहां पे एक बहुत फेमस खातून थी और वो मशहूर थी कि वो उनसे जो भी पूछा जाता है वो हमेशा सच बताती हैं। तो उस गांव के इर्द गिर्द के कुछ लोग थे और उन्होंने कहा कि लेट्स हैव एन समथिंग के जहां पर हम कुछ ऐसा करें कि इससे जाके जब सवाल पूछा जाए तो उसको डिस्ग्रेस मिले। वो उसको पसंद नहीं करते थे। सो उन्होंने अपने हाथ में एक तितली ली और जाके पूछा, है वाइज वुमन बताए मेरे हाथ में क्या है और क्या ये जिंदा है या मुर्दा है? तो उस औरत ने थोड़ी देर सोचा, उसने कहा बच्चे तुम्हारे हाथ में एक तितली है और ये डेड है। और जब हाथ खोला तो वो ऐसा ही था। तो वो बड़े शर्मिंदा हुए और सबने प्रेस किया कि वाइज वुमन ने बिल्कुल सही बात बताई है। थोड़ी देर बाद उन्होंने, 1 हफ्ता 10 दिन गुजरे, उन्होंने कहा इस दफा ना जिंदा तितली ले जाते हैं। तो वो अब देखें वो क्या कहती है। तो वो दोबारा चले गए। उन्होंने कहा जी वाइज वुमन बताएं मेरे हाथ में क्या है और क्या ये जिंदा है या मुर्दा है? तो वाइज वुमन सेड के तुम्हारे हाथ में बच्चे एक बटरफ्लाई है और ये जिंदा है। तो वो जिंदा ही थी। वो फिर बहुत शर्मिंदा हुए।
उन्होंने तीसरे हफ्ते सोचा कि अब हम ऐसा करेंगे कि तितली हाथ में रखेंगे, अगर उसने कहा जिंदा है तो हम थोड़ा सा दबा के मार देंगे, और अगर उसने कहा मुर्दा है तो वो तो उसको हम वैसे ही जिंदा दिखा देंगे। तो अब वाइज वुमेन की तो इंसल्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। सो वो दोबारा चले गए, उन्होंने कहा वाइज वुमन ये मुझे बताएं कि मेरे हाथ में जो क्या है, और क्या जिंदा है या मुर्दा है। तो वाइज वुमन सेड, थोड़ा सा सोचा और उसने कहा कि बच्चे तुम्हारे हाथ में ना एक तितली है, और इट्स अप टू यू कि उसको मार दो या छोड़ दो। सो टेक होम मैसेज फॉर ऑल द लिसनर इज दैट कि आपकी लाइफ सीरियसली इन योर हैंड्स। आप उसके साथ उसको मार के या उसको उसका उसका बेड़ा गर्क करके जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, या यू वांट एन समथिंग विच इज ए प्रोडक्टिव, विच इज समथिंग बेनिफिशियरी फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, ह्यूमैनिटी। अल्लाह ताला जो आप सोच रहे हैं वो सब दे देगा, लेकिन लेट्स बी एन अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। So I'm really, really thankful once again, Shifa International Hospital, to provide me the opportunity to interact with an, mashallah, alhamdulillah, 135 audience session. And thank you once again, Rehan, over to you. थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू लिसन यू एंड जो सर आपकी प्रेजेंटेशन होती है इट्स ऑलवेज एंगेजिंग। एंड आई नो कि मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं होगा जिसने अपनी आईज या ईयर को ना इस सेशन से लेफ्ट राइट किया होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। जस्ट क्विकली कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर वो पूछ लेते हैं विद इन 5 to 3 minutes। जस्ट एक क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज टू वर्क रिमोटली इन पाकिस्तान। रिमोटली अपॉर्चुनिटीज हमारे पास, अब कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो कल भी मेरे पास एक बच्चा था, वो कहता है कि जी हम एक रिमोट ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वो मेडिकेशन रिकंसिलिएशंस के ऊपर कोई वर्कअप कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली लाइसेंस एक्टिविटी। वहाँ पर आप एक्चुअली एक सपोर्टिव टेक्नोलॉजी एक्टिविटी कर रहे हैं, बट अंटिल यू डोंट हैव द लाइसेंस ऑफ दैट ओवरसीज कंट्रीज, यू कांट मेक एन अ फ्रंट लाइन पर्सन जो कि वहाँ पर कोई भी क्लिनिकल इंटरवेंशंस का पार्ट बन सके। So that's something challenging. Otherwise, remote work आप कर सकते हैं until you are qualified or registered at that country. ओके सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो अक्सर पूछा जाता है कि हम सब लोग क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन क्या ये लाजमी है क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनने के लिए हम अगर दूसरे जो जॉब्स हैं उनको ज्वाइन करें? although you have informed about the residency program, about different structured training programs, तो लेकिन वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इज इट अ गुड स्ट्रेटेजी कि हम जो है कोई हॉस्पिटल फार्मेसी या कोई दूसरा ज्वाइन कर लें, देन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी हम उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट में कन्वर्ट करें। यस यू कैन डू इट, बट वही जो हमने बात की कि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। यू कांट वेट इन ए क्यू के जी अच्छा चले, मैंने किसी के लिए स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के लिए आपको 10 साल तो इंतजार नहीं करेंगे। सो यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ, बट डू बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट यू हैव अराउंड योर सेल्फ। स्टार्ट विद योर करियर, बट अगर आपको स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग लर्निंग नहीं भी मिलता फॉर इंस्टेंट, तो लेट्स डू योर पार्ट फर्स्ट, कि आप सबसे पहले अपने अंदर डेडिकेशन। अब हमें, जैसे मैं रेहान की ही एग्जांपल दूं, तो इट वाज समथिंग जो कि बेसिकली खुद से जब तक आप अपनी इनपुट नहीं डालेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप अपने गोल्स को क्लियर नहीं करेंगे, इट्स हार्डली कि आपको घर में आके कोई कहेगा ये ले आपको बोर्ड सर्टिफिकेशन मिल गई है। इट्स समथिंग विच विच इज अ प्लान, विच नीड एन ब्लड एंड स्वेट, विच नीड एन डायरेक्शंस। आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं बिफोर योर एग्जाम्स एंड ऑल दो स्टफ। तो इसमें कहीं पे भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आपके पास स्ट्रक्चर ट्रेनिंग होगी, लेकिन स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हमें हेल्प करेगी ताकि जो बच्चों के 5 5 साल ज़ाया हो जाते हैं वो आप 1 साल के अंदर कोर क्रॉक्स करके उनको पढ़ाएं, बताएं। और जो हमारे पास 1 साल के बाद रेजिडेंट निकलता है, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि उस पर जो 5 साल की इन्वेस्टमेंट हम यूजली किसी पे करते हैं, वो 1 साल के अंदर वो बच्चा बाहर आ जाता है, और आप उसकी प्रोडक्टिविटी अर्ली लेते हैं। तो इट्स एक्चुअली सेविंग ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स बेसिकली, जो कि हम किसी भी नॉन स्ट्रक्चर ट्रेनिंग को वर्सेस स्ट्रक्चर ट्रेनिंग से कंपेयर करने में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है और स्पेशली जो फ्रेशर्स लाजमी पूछते हैं कि इफ यू डोंट गिव अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेशर्स देन हाउ डू दे गेट एक्सपीरियंसेस? नहीं नहीं, वी डू ऑफर। मेरी तो विश लिस्ट में एक बहुत बड़ी जो ऑप्शंस होती हैं, वी यूजुअली प्रेफर, माय पर्सनल अगर ओपिनियन पूछेंगे तो आई यूज टू प्रेफर फ्रेश ग्रेजुएट्स बिकॉज दे आर इजी टू मोल्ड, दे आर इजी टू, दे हैव ए वेरी गुड एनर्जी। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि द एंट्री गेटवे नीड एन एक्सपीरियंस। तो जो एटलीस्ट शौकत खाना में जो एंट्री फार्मेसी लेवल है, दैट रिक्वायर्स अ जीरो एक्सपीरियंस, so फ्रेश पीपल कैन इजीली ज्वाइन। सर इसमें मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा थोड़ा सा कि आई थिंक सो कि
अगर हम सिर्फ स्किल सेट भी शो कर दें तो एक्सपीरियंस इतना नहीं, आपका स्किल सेट, आपका एक इंटेंट नजर आ रहा है, यू कैन डू इट, यू वांट टू डू इट, तो उसको Absolutely रिक्रूटर्स, एवरीवन वुड लव टू हैव यू इन द ग्राउंड के ठीक है, इस ये बंदा करना चाहता है, दो true. इसमें ही हैज एक्सपर्टीज। तो जो Exactly. एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके एक अपने इंटेंट के जरिए आते हैं जिससे आप उसे सीख लेते हैं। सर True. देयर आर मेनी क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड एज वेल, लेकिन मोस्टली वो डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इसको कंक्लूड करूंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर सच ए वंडरफुल सेशन सर। एंड आई थिंक सो कि वो जो लोगों को ट्रबल थी ना, जो लाइफ ऑफ जलेबी थी, तो शायद अब उनकी जलेबी सीधी हो गई। Allah karam kare. So thank you once again. It's been a wonderful session. Thank you A very much. wonderful session, and thank you so much for joining this session. And I will hope that you will continue to support us as you are providing your support. And thank you so much, sir, for the Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you.